کہانی کا آغاز ایک لڑکی لیزا سے ہوتا ہے جو سڑک کے بیچوں بیچ لیٹی ہوئی ہے اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک کار سڑک پر آتی ہے۔ جیسے ہی لیزا کو وہ کار اپنی طرف آتی نظر آتی ہے، وہ اچانک ایک دردناک موت کے خوف سے اپنا ارادہ بدل لیتی ہے۔ وہ فوراً سڑک سے اٹھ کر کنارے پر آ جاتی ہے۔ کار والا آدمی رک کر لیزا کی مدد نہیں کرتا بلکہ ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اصل میں آج لیزا کی بیٹی کا برتھ ڈے ہے، لیکن اب اس کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کار والا آدمی جس نے لیزا کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اگنور کیا تھا، اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے۔ وہ اپنی کار ریورس کرتا ہے اور لیزا کے پاس آتا ہے۔ کار میں بیٹھا ایک آدمی جس کا نام ایڈم ہے لیزا سے پوچھتا ہے "Are you okay?" جس پر لیزا جواب دیتی ہے "Yes, I'm fine. Nothing happened to me." اس پر آدمی لیزا سے کہتا ہے کہ یہ جگہ بہت سنسان ہے اور شہر کافی دور ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں شہر تک لفٹ دے سکتا ہوں۔ لیزا فوراً راضی ہو جاتی ہے اور کار میں بیٹھ جاتی ہے۔ سفر کے دوران ایڈم لیزا سے پوچھتا ہے "تم اکیلی اس سنسان جگہ پر کیا کر رہی تھی؟" لیزا کہتی ہے "آج میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے جس کی مجھے آج بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ لیزا مزید کہتی ہے "اب میں بالکل اکیلی ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا۔ یہ سن کر ایڈم کہتا ہے "اچھا، اسی لیے تم روڈ پر لیٹی ہوئی مرنے کے لیے تیار تھی؟" لیزا جواب دیتی ہے "نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، میں بس کسی طرح اپنی بیٹی سے دوبارہ ملنا چاہتی ہوں۔" اسی دوران لیزا کار کا ریڈیو آن کرتی ہے۔ ریڈیو پر ایک نیوز چل رہی ہوتی ہے۔ رپورٹر بتاتا ہے کہ جنگل میں ایک سیریل کلر گھوم رہا ہے اور آج صبح اس نے مزید 2 لڑکیوں کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے پاس کلر کی کوئی پکچر نہیں ہے، لیکن انہیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ کلر ایک وائٹ مین ہے، براؤن کار میں گھومتا ہے اور اس کے رائٹ ہینڈ پر ایک کراس کا نشان ہے۔ یہ سنتے ہی لیزا کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ ریڈیو پر جس کلر کی بات ہو رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈم تھا۔ ایڈم کے ہاتھ پر کراس دیکھ کر لیزا بہت ڈر جاتی ہے۔ لیزا کچھ کرنے سے پہلے ہی ایڈم اچانک کار کو زور سے بریک مارتا ہے، جس سے لیزا کا سر زور سے ڈیش بورڈ سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد لیزا کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک عجیب بنکر میں قید پاتی ہے جو چاروں طرف سے مضبوط لوہے کی دیواروں سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیزا یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور زور زور سے مدد کے لیے چلاتی ہے، مگر کوئی نہیں آتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا نے ایک الگ سا سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پر ایک واچ بھی بندھی ہوئی ہے۔ لیزا کوشش کرتی ہے کہ وہ واچ اتار دے، لیکن وہ اتنی مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی کہ چاہ کر بھی نہیں نکلتی۔ آخرکار وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اچانک اس چیمبر کا ڈور کھلتا ہے، سامنے ایک لمبا ٹنل نظر آتا ہے جس کے آخر میں روشنی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ لیزا کو امید ہوتی ہے کہ شاید یہی باہر جانے کا راستہ ہے۔ وہ خوشی خوشی ٹنل کی طرف بڑھتی ہے، مگر پیچھے چیمبر کا ڈور اچانک بند ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر لیزا کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ پھر اچانک اس کی واچ میں الارم بجتا ہے اور 11 منٹس کا ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیزا سمجھ جاتی ہے کہ اگر وہ 11 منٹس میں یہاں سے نہ نکلی تو ہمیشہ کے لیے یہیں پھنس جائے گی۔ وہ تیزی سے روشنی کی طرف دوڑنے لگتی ہے، مگر جیسے جیسے وہ قریب پہنچتی ہے ٹنل کا اگلا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگتا ہے۔ لیزا دوڑ کر پہنچتی ہے، مگر جب تک وہ وہاں پہنچتی ہے دروازہ پوری طرح بند ہو جاتا ہے۔ وہ زور زور سے چیختی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ ایک دوسرا ٹنل بہت تنگ سا راستہ بنائے ہوئے ہے۔ لیزا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہمت کر کے اس تنگ راستے میں گھس جاتی ہے اور بڑی مشکل سے آگے بڑھتی ہے۔ آخرکار وہ ایک پلیٹ فارم تک پہنچتی ہے جہاں 2 راستے ہوتے ہیں، ایک اوپر جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا نیچے۔ لیزا اوپر کا راستہ چنتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتی ہے نیچے کا فلور اوپر اٹھنے لگتا ہے۔ اگر وہ بر وقت نہ نکلتی تو وہ نیچے دب کر مر جاتی۔ لیزا ڈرتے ڈرتے دوڑتی ہے اور آخری لمحے پر باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ سکون کا سانس لیتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ آگے کا راستہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ اسی وقت اس کی واچ کا الارم بجتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آدھا وقت گزر گیا ہے اور اب صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ لیزا پھر آگے بڑھتی ہے۔ تھوڑی دور جا کر وہ دیکھتی ہے کہ ایک برنٹ ڈیڈ باڈی راستے میں پڑی ہوئی ہے جس کی حالت بہت بری ہے۔ اس ڈیڈ باڈی کے ہاتھ پر بھی وہی واچ بندھی ہوتی ہے جو لیزا کے ہاتھ پر ہے۔ لیزا سمجھ جاتی ہے کہ یہ شخص بھی اسکیپ کرنے کی کوشش میں مارا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر لیزا کی بچنے کی ساری امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں، لیکن وہ ہمت جمع کر کے آگے بڑھتی ہے۔ واچ میں اب صرف 2 منٹ رہ جاتے ہیں۔ تبھی ایک بڑا آئرن بار اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ وال سے ہیٹنگ پائپس نکل کر پورے ٹنل کو گرم کرنے لگتے ہیں۔ لیزا سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کی لاش بھی اسی طرح جلے گی۔ اسی وقت ایک چھوٹا سا حصہ وال میں کھلتا ہے۔ لیزا کرال کر کے اندر چلی جاتی ہے اور اگلے لمحے ایک گلاس ڈور بند ہو کر اسے سیکیور کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ٹائمر 0 پر پہنچتا ہے ہیٹنگ پائپ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور پورا ٹنل جل کر راکھ ہو جاتا ہے، لیکن لیزا محفوظ رہتی ہے کیونکہ وہ سیکیور سیکشن میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آگ بجھ جاتی ہے اور چیمبر کا ڈور کھلتا ہے۔ لیزا باہر آنا نہیں چاہتی، مگر اچانک وال اسے دھکا دے کر دوبارہ ٹنل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہی لیزا وہاں سے باہر آئی اسی گھڑی میں دوبارہ 11 منٹ کا ٹائمر سیٹ ہو گیا۔
जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, उस टनल का ऊपर वाला हिस्सा नीचे आने लगा और सीधा उसके साथ जुड़ गया। वहां बस उतनी ही जगह बची थी कि वो रेंग कर निकल सके। लीजा मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उसका वक्त खत्म होता नजर आया, यानी बिल्कुल 11 मिनट बाद उस सुरंग में फिर आग का सैलाब आएगा और लीजा को खत्म कर देगा। वो सोचती है कि ऐसी बुरी मौत मरने से बेहतर है क्यों न दोबारा कोशिश करके निकलने की कोशिश की जाए। इसीलिए वो अपनी हथेलियों की मदद से दोबारा रेंगते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर रेंगने के बाद वो सुरंग खत्म हो जाती है और आगे एक पानी का टैंक आ जाता है। लीजा बहुत थक चुकी थी और प्यास ने उसे बीमार कर दिया था। इसी तरह लेटी हुई हथेलियों की मदद से वो पानी पीती है और अपनी प्यास बुझाती है। जब उसने अपनी घड़ी देखी तो अब सिर्फ 8 मिनट बाकी थे। अब उसके पास पानी के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और पानी में कूद गई। पानी के अंदर जाने के बाद टैंक काफी बड़ा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब कहाँ जाना है। वो बाहर निकलने के रास्ते तलाश करती रही मगर कोई रास्ता नजर नहीं आया। दूसरी तरफ जहाँ से वो अंदर आई थी वो रास्ता भी बंद हो चुका था। अब उसकी सांसें कम हो रही थी। तभी टैंक की एक दीवार से कोई दरवाजा खुला। लीजा फौरन उस दरवाजे से बाहर निकली और ऊपर आ गई। जैसे ही वो बाहर आती है उसने गहरा सांस लिया और आगे का रास्ता तय करने लगी, मगर लीजा बहुत थकी हुई थी। आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। चंद लम्हों में ही शदीद थकन की वजह से लीजा का दिल घबरा गया। तब अचानक किसी का निहा चीख उसके कानों में गूंजी। कोई और भी वहां था जो मदद मांग रहा था। उसकी आवाज सुनकर लीजा के अंदर जिंदा रहने की उम्मीद जाग उठी। वो फौरन उस आवाज की तरफ दौड़ती है। अचानक उसके नीचे एक दरवाजा खुलता है जिसमें उबलता हुआ एसिड था। लीजा उस एसिड में गिरने से बच गई। वो जान गई कि ये एसिड इतना खतरनाक है कि चंद सेकंड में मजबूत लोहे को भी पिघला देगा। लीजा ने फौरन अपने कपड़ों का एक टुकड़ा काटकर एसिड में डाला ताकि आजमाए। वो कपड़ा चंद सेकंड में ही स्याह राख में बदल गया। ये देखकर वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ने लगी। वो उसी जगह पार करने के लिए कंधों और पैरों को किनारों पर रखकर जा रही थी कि उसका घुटना अचानक एसिड में फंस गया, जिससे लीजा दर्द से चीखी। खुशकिस्मती से उसका घुटना उसकी सूट की वजह से पिघला नहीं, मगर घुटने पर गहरा जख्म आ गया। खुशकिस्मती से ये थी कि अब मदद की आवाज करीब से आ रही थी। लीजा ने दर्द को भुलाकर दोबारा उस आवाज की तरफ दौड़ लगाई और आखिरकार वो एक लोहे के ग्रिड के करीब पहुंच गई। कुछ फासले पर एक और ग्रिड था जिसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उस आदमी के हाथ में भी लीजा की तरह घड़ी और सूट बंधा था। लीजा ने उससे कहा, सुने, हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। मगर वो आदमी काफी अरसे से उस घड़े में फंसा हुआ था और उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो कभी लीजा को गालियां देता, कभी माफी मांगता। वो कहता था कि ये लोग जल्द वापस आएंगे और हमें मार देंगे। ये कहकर वो पागल जोर जोर से हंसने लगता। फिर लीजा ने देखा कि घड़ी में 60 सेकंड की गिनती शुरू हो गई है। वही हीटिंग पाइप्स फिर दीवारों से निकल आए। इस बार बचाने वाला सेक्शन लीजा और उस आदमी के दरमियान खुला, जिसमें सिर्फ एक शख्स के लिए जगह थी। अब या तो वो पागल बचेगा या लीजा। अगले ही लम्हे लीजा और उस पागल के सामने वाला लोहे का ग्रिड हटा दिया जाता है। दोनों तेजी से उस चैम्बर की तरफ दौड़ते हैं और दोनों एक साथ चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। फिर वो आपस में एक दूसरे को धकेलकर अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। दरमियान में कभी लीजा उसे चैम्बर से बाहर फेंकती, कभी वो लीजा को धक्का देता। आखिरकार जब वक्त खत्म होने को आया, लीजा ने उस आदमी को चैम्बर से बाहर लात मार दी। वो आदमी लीजा के पांव पकड़कर खींचने की कोशिश करता रहा। उसी लम्हे 60 सेकंड मुकम्मल हुए और उस चैम्बर के शीशे के दरवाजे ने उस आदमी के हाथ को काट दिया। वो आदमी दर्द से चीखा। उसी लम्हे लीजा की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ी जिस पर क्रॉस का टैटू था। वो समझ गई कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कार में जिस किलर की बात रेडियो पर हुई थी, यानी एडम ही है। अब लीजा का शक साफ हो गया। पहले उसने सोचा था कि एडम ने उसे यहाँ बंद किया था, मगर वो गलत थी क्योंकि अब बेचारा एडम खुद मौत के मुंह में था। उसी बीच लीजा की घड़ी का 11 मिनट का वक्त पूरी तरह गुजर गया और हीटिंग पाइप से निकलने वाली तेज आग ने एडम को चंद सेकंड में राख कर दिया। एडम की ऐसी हौलनाक मौत देखकर लीजा कांपने लगती है। कुछ देर बाद एक रोबोट एक छोटे सुरंग से उसी सेक्शन में आया। वो एक खौफनाक स्कल जैसा रोबोट था। ये रोबोट लीजा को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके सुलगते घुटने का इलाज करता है। लीजा ने रोबोट से पूछा कि वो कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। जवाब में एक आला निकलता है जो लीजा की सूट से मुंसलिक हो जाता है। उस आले की मदद से लीजा को वो सब फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब वो कार में एडम के साथ थी और जब उसने हकीकत जान ली तो उसके दिल पर छुरा घोंपा गया था। इसी लम्हे एडम ने लीजा के सीने में छुरा मारा और उसे कार से बाहर फेंक दिया था। लीजा ने उस वक्त तक एक सफेद रोशनी देखी और फिर वो वापस हाल में आ गई। लीजा समझ जाती है कि ये एलियंस थे जिन्होंने एडम से उसे बचाया और उसे यहाँ लाए, मगर वो ये नहीं जान पाती कि उन्होंने इसे यहाँ क्यों रखा है। रोबोट ने भी बस इतना दिखाया कि ये लोग उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे ये खेल मुकम्मल करना है, तब वो बाहर निकल सकेगी।
लीजा अब चैम्बर से बाहर आई कि आगे का रास्ता तय करे। एडम का कटा हुआ हाथ भी वहां पड़ा था। उसी वक्त उसने चंद अलामात भी देखी जिनके मानी उसने जानने की कोशिश की कि अचानक एक घूमने वाला पंखा उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर लीजा पीछे हटती है और एक सुराख से ऊपर की तरफ पहुंच गई। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक जगह रुक गई। वहां का ढक्कन खुला और एक खौफनाक मखलूक निकल आई जो इंसान जैसी तो थी मगर इंसान नहीं थी। उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर जल चुका था और आंखें सफेद पत्थरों जैसी थी। और फिर लीजा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर पड़ती है। उस कटे हुए हाथ को देखकर लीजा समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही एडम है जो अब एक डीमन बन चुका था और अब वो लीजा को मारना चाहता था। एडम की आंखें जली हुई थीं, इसीलिए वो देख नहीं सकता था मगर सुन सकता था। लीजा खामोशी से आगे बढ़ती है मगर अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी जिसने एडम को शक में डाल दिया और वो तेजी से लीजा का पीछा करने लगता है। लीजा उसके करीब पहुंचने ही वाली थी जब वो एक बारीक सुरंग के जरिए उसके सामने से निकल गई। क्योंकि एडम देख नहीं सकता था वो उस जगह से न गुजर सका। लीजा ने वो सुरंग पार करके एक जगह पहुंचती है जहां दो रास्ते थे और वह समझ ना पाई कि कौन सा रास्ता चुने। काफी गौर फिक्र के बाद जब वो समझ ना पाई तो उसने बाईं सुरंग में जाने का फैसला किया। वहां बाहर एक कमरा था जिसकी दीवारें शीशे की बनी हुई थीं। उन शीशों पर लीजा अपनी बेटी की पैदाइश से मौत तक की जिंदगी देख सकती थी। वहां लीजा ने ये भी देखा कि उसकी बेटी की जिंदगी कैसे खत्म हुई। लीजा जोर जोर से रोने लगती है। फिर उसने देखा कि एडम छत की तरफ आ रहा है मगर लीजा ने उसे छोड़कर दूसरी सुरंग में कदम रखा जहाँ उसने वो मंजर देखा जिससे उसकी खुशी मान पड़ जाती है। उसने नीला आसमान देखा जो बाहर चमक रहा था। आजादी इतने करीब देखकर लीजा को दोबारा हिम्मत मिली मगर पार करने के लिए उसे एक तंग रास्ते से गुजरना पड़ा। अब सिर्फ 60 सेकंड बाकी थे। अगले लम्हे दीवार से हीटिंग पाइप्स निकलकर आए जो उस जगह को आग से भरने वाले थे। लीजा ने वो कांटेदार तारें छेदते हुए खुद को आगे बढ़ाया मगर वो तारें उसके जिस्म में घुस जाती हैं और उसकी कमर को पूरी तरह काट देती हैं। लीजा बहुत दर्द में होती है और उसके पीछे से बहुत खून बहने लगता है। फिर भी लीजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ बढ़ती रहती है। फिर एक चैम्बर खुलता है जिसमें एडम तेजी से गया और छुप जाता है। जल्द ही आग का सैलाब आने वाला था। लीजा खून में लथड़ी हुई कोशिश कर रही थी कि जल्दी बाहर निकल जाए मगर उसके जिस्म ने दम तोड़ दिया और वो चैम्बर की निचली सतह में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीजा की आंख खुलती है तो वो वापस उसी जगह आई जहां से उसने शुरुआत की थी। यानी अब तक जो भी कोशिशें उसने यहाँ से बाहर निकलने के लिए की थी वो सब जाया हो चुकी थी और वो बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी वो रोबोट दोबारा आता है और उसके जख्म पर पट्टी बांधने लगता है। लीजा ने रोबोट से मना कर दिया और कहा कि वो दोबारा ये सब नहीं दोहराना चाहती, वो अब मर जाना चाहती है। रोबोट ने लीजा की बात सुनी और अपनी जुबान से एक सिरिंज निकाली जो लीजा के जिस्म की तरफ बढ़ने लगती है। तब लीजा को एडम के हाथ पर मौजूद निशानात याद आते हैं। वो समझ गई कि वो निशान जरूर किसी रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। उसने एडम के हाथ पर मौजूद निशानों को गौर से देखना शुरू किया और आखिरकार समझ गई कि ये तीर हैं जो रास्ता दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर पहले तीर की सिमत बाएं तरफ थी जिसका मतलब था कि वो पहले बाएं सुरंग में जाए। दूसरे निशान का तीर दाएं तरफ था यानी पहले सुरंग पार करने के बाद जब दूसरी सुरंग मिले तो फिर दाएं सुरंग में जाना था। कहानी का ये हिस्सा लीजा के लिए सबसे ज्यादा अजीब और खतरनाक था। लीजा को लगा कि यकीनन एडम के हाथ के ऊपर जो निशान है वो रास्ता दिखाते हैं। जैसे ही उसने ये बात समझी उसने रोबोट से कहा कि वो उसके जख्म ठीक करे। जख्म ठीक होते ही लीजा दोबारा टनल्स में निकल पड़ती है। अब चूंकि लीजा पहले भी ये टनल्स पार कर चुकी थी इसीलिए उसके लिए रास्ता आसान हो गया था। वो चलते चलते उस होल के पास आ जाती है जो एसिड से भरा हुआ था। यहाँ उसने अपनी वॉच को एसिड में जला दिया और अपनी कलाई से अलग कर दिया। अब आगे उसे 2 टनल्स मिलते हैं जहाँ उसने पहली बार एक रास्ता चुना था मगर उस बार सिंबल्स के मुताबिक दाएं वाला टनल दुरुस्त था। लीजा फौरन दाईं तरफ जाती है जहां उसे 2 और टनल्स मिलते हैं लेकिन सिंबल्स के मुताबिक इस बार सीधा नहीं बल्कि बाएं वाला हिस्सा सही था। इसी तरह लीजा निशानात देखकर आगे बढ़ती जाती है। उसने अपनी आवाज एडम के रास्ते में फेंक दी ताकि वो उस पर धोखा खाकर गलत रास्ते में चला जाए। एडम वाकई उस टनल में गया लेकिन जब लीजा ने सिंबल्स दोबारा चेक किए तो पता चला कि असल में एडम वाला टनल ही सही था। ये देखकर लीजा परेशान हो जाती है मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो भी आहिस्ता आहिस्ता एडम वाले टनल्स में दाखिल हो जाती है। ये टनल बहुत अजीब सा था जैसे किसी बड़े जानवर का पेट। लीजा एहतियात से आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी आगे जाती है तो उसे अपनी वॉच पर नजर पड़ती है लेकिन साथ ही एडम भी वहाँ मौजूद होता है। चूंकि एडम देख नहीं सकता लीजा ने आहिस्ता से अपनी वॉच उठाती है लेकिन अचानक उस पर अलार्म बजने लगता है जिसमें 60 सेकंड्स की काउंटडाउन शुरू हो जाती है। एडम ने फौरन लीजा की आवाज सुन लेता है और उसका पीछा शुरू कर देता है। लीजा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वापस उसी रास्ते से भागती है। हीटिंग पाइप्स दीवारों से निकल आते हैं और रेस्क्यू चैम्बर खुल जाता है। लीजा फौरन चैम्बर में छुप गई। एडम भी चैम्बर तक पहुंच गया मगर उस वक्त तक चैम्बर का शीशा बंद हो चुका था।
यहाँ लीजा एडम को देखकर उसके सामने मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन बदकिस्मती से उस बार हीटिंग पाइप्स ने आगे छोड़ने की बजाय अंदर घुस जाना शुरू किया और चैम्बर का दरवाजा खुल गया। अगले ही लम्हे एडम सीधा लीजा पर गिर गया। दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लीजा किसी तरह बचते हुए आगे बढ़ती है और फिर उसे दोबारा दो रास्ते मिलते हैं। इस बार सिंबल्स के मुताबिक उसे दाईं तरफ जाना था। जैसे ही वो भूल भुलैया जैसे टनल्स में पहुंचती है, सामने से एक लड़की आती है। लीजा ने उसे देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। नीना की मौत के बाद लीजा टूट चुकी थी और आज उसकी सबसे बड़ी खुशी पूरी हुई थी। नीना ने कहा, मामा मुझे दोबारा तन्हा मत छोड़ना। लीजा ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर लीजा आगे बढ़ जाती है, जबकि नीना उसको आवाजें देती रह जाती है। लीजा दाईं तरफ के टनल में पहुंचती है, जहाँ उसे सामने खुला आसमान दिखाई देता है। खुशी से उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है, लेकिन अचानक 3 बड़े आयरन ब्लेड सामने आ जाते हैं जो ऊपर नीचे हो रहे थे। लीजा ने गौर किया तो पता चला कि ये पहला ब्लेड हर 4 सेकंड बाद नीचे आता है। वो बहादुरी से उसको क्रॉस कर जाती है। दूसरा भी क्रॉस कर लिया, लेकिन तीसरा सिर्फ 2 सेकंड्स में नीचे आ रहा था। आज़ादी की ख्वाहिश में लीजा ने यह भी क्रॉस कर लिया, मगर बदकिस्मती से उसकी टांग ब्लेड में कट गई। शदीद दर्द के बावजूद लीजा आगे बढ़ती गई और आखिर में उसने आसमान को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया वो किसी स्क्रीन से टकरा गया जिस पर आसमान की वीडियो चल रही थी। ये देखकर लीजा टूट जाती है। उसने कहा, मैंने सब कुछ किया जो कहा गया, फिर भी। और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसी वक्त हीटिंग पाइप्स वहां वापस निकल आए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बार उन्होंने आग नहीं बरसाई। अचानक ऊपर का हिस्सा खुल गया और एक तेज रोशनी ने लीजा को अपनी तरफ खींच लिया। उसका जिस्म हवा में उठने लगा और वो रोशनी में जा बसी। कुछ देर बाद लीजा ने आंखें खोली तो वो एक बहुत बड़े वाटरफॉल के किनारे मौजूद थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वहाँ उसकी बेटी नीना भी खड़ी होती है। लीजा ने पूछा, क्या मैं मर गई हूँ? नीना ने जवाब दिया, आपका जिस्म एक बार नहीं कई बार मर चुका है। लीजा ने कहा, अब मुझे क्या करना है? नीना ने मुस्कुरा कर कहा, अब आपको सिर्फ यहाँ जीना है और कुछ नहीं। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दुनिया नहीं बल्कि कोई और जगह है जो जन्नत की तरह खूबसूरत है। इस कहानी की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि जब लीजा कार में एडम के साथ थी, एडम ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। लीजा सीधी हेल में गई, जहां उसके गुनाह धो दिए गए और आखिरकार वो हेवन पहुंच जाती है। और यूं ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय।